Hello everyone. Today we will be continuing with our topic of reproductive system. In last topic, we discussed about asexual reproduction, in which we talked about six asexual reproduction methods. One was binary fission, then was budding, spore formation, vegetative propagation, fragmentation, and regeneration. All those topics were important as 3 markers, as well as important for pre. So today we will be continuing with sexual reproduction. Sexual reproduction. When we are talking about sexual reproduction, what is sexual reproduction? It is a process where two parents participate in producing their offspring. And when we are talking about participation, they participate with help of their gametes, such as for males it is sperms and for female it is ova or egg. So what happens in sexual reproduction? Two parents are involved, a male parent and a female parent. But when you're talking about asexual reproduction, if you remember, there was no male and female differentiation. There was just only one parent. It was dividing itself to form binary fission or regeneration method, or a tumor-like structure was growing, which we called it as budding. So in asexual, a single parent was involved and no gametes were produced or used. But in sexual reproduction, two parents are involved and gametes are also involved. So this type of reproduction is known as sexual reproduction. Now, it is a natural way of reproduction in humans, animals, and majority of plants. And when we are talking about plants, we are talking about higher plants, such as those plants that have flowers and fruit and seeds. Those plants show sexual reproduction, such as let's say, for example, mango, guava, thick orange. These plants show sexual reproduction. So, sexual reproduction is seen in humans, animals, as well as in higher plants. Next, in sexual reproduction, the offsprings get a set of genes from two different individuals. Best example is this: in our body, we have two sets of genes. One set of gene came from our male parent, the other set came from our female parent. So, every organism or every offspring in a sexual reproduction has two sets of genes or two sets of chromosomes. And why it is important? This will lead to subtle variation because two different genes are coming up together in our body. So we'll have various properties in our body. And because of these various different properties, our genes or our nature will have subtle variations, minute variations. हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा क्या होते चलेंगे, डिफरेंट होते चलेंगे. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम और हमारे ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन को कंपेयर करते हैं. ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन और पापा की जनरेशन को अगर कंपेयर करें, आपको देखेंगे पापा की सिमिलरिटी ग्रैंड पेरेंट से बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी. लेकिन फिर पापा सिर्फ जब आप पापा और मम्मी डेवलप हुए बने थे, फिर हमारी बॉडी में अगर आप देखो तो ग्रैंड पेरेंट के कंपेरिजन में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. ठीक, हर जनरेशन में थोड़ी थोड़ी ये बारीक सी चेंजेस हो रही है और इन्हीं बारीक सी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, सब्टल वेरिएशन. हर जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे. किसी का लुक चेंज होगा, किसी के बॉडी फीचर्स चेंज होंगे, स्किन कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, ये छोटे छोटे चेंजेस होता है. बट समय के साथ आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, ये बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, ये छोटे छोटे वेरिएशन आगे चल के एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा वेरिएशन बनता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, विथ ईच पासिंग जनरेशन हमारी हाइट क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जा रही है. ठीक, हमारे हाथ पैर की उंगलियों की जो लंबाई है वो छोटी होती जा रही है. जैसे आपके जो लिटिल फिंगर है, सबसे जो हाथ की जो छोटी उंगलियां, पहले किसी जमाने पहले, बहुत जनरेशन पहले, उस लगभग बाकी सारे उंगलियों के बराबर हुआ करती थी. लेकिन हर जनरेशन में हुआ क्या, थोड़े थोड़े करके ये छोटी उंगली छोटी होती चली गई और आज देख लीजिए कितनी छोटी हो गई है. ये अंदाजा लगाया जाता है आने वाले मिलियन ईयर्स के अंदर ये छोटी वाली उंगली गायब हो जाएगी. हमारी हाइट भी उसी तरह धीरे धीरे कम होती जा रही है. एवरेज हाइट जो है वो कम होती जा रही है हर जनरेशन में. एवरेज में बहुत थोड़ा सा कह सकते हो 0.001 mm कम हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है. आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये 0.1 भी, 0.001 भी एक बड़ा नंबर बन सकता है. कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, बस वही हो. तो एक सबटल वेरिएशन क्या है, बारीक से वेरिएशन है जो कि हर जनरेशन में हो रहे हैं. लेकिन समय के साथ ही बारीक सी जो वेरिएशन है एक बड़ा वेरिएशन हो जाएगा. इसके होगा क्या, देख लेते हैं. दीज वेरिएशन accumulate over generation.
जनरेशन टू जनरेशन ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड मे फाइनली गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज। इसे हमारी स्पीसीज की बात करते हैं। हम ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, बंदरों से हुए थे, लेकिन उनके बॉडी से थोड़े थोड़े चेंज होते गए और हम आज की तारीख में एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। बंदर अलग कैटेगरी के हो गए और हम अलग कैटेगरी। ये बारीक से वेरिएशन की वजह से ही हो पा रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही मेन ऑब्जेक्टिव है, टू ब्रिंग वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, और इसी वेरिएशन की वजह से आगे चल के नए टाइप के ऑफस्प्रिंग या फिर नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होंगे। लिटरली कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फैसिलिटेट्स इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन में मदद करता है। नेक्स्ट, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रीजन भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंसेस है, यहाँ पे पेरेंट्स में मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट डिफरेंशिएशन है। इस वजह से हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हैव अ गो थ्रू इट, देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बस पीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, डिटेलेशन प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। बिकॉज अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस, हम बायोलॉजी को पीएससी के पर्सपेक्टिव से तैयार कर रहे हैं, ना कि नीट या फिर पीएमटी के पर्सपेक्टिव। हमें मेडिकल की एग्जामिनेशंस नहीं देनी है, हमें बस पीएससी करना है। तो इसमें सारे बॉडी सिस्टम्स को पीएससी के पर्सपेक्टिव से हम तैयार कर रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it is being a sexual reproductive system, it is differentiated into male and female reproductive system. As human reproductive system is a male sexual reproductive system, इसे हमने दो टाइप के reproductive system में differentiate कर दिया है, मेल एंड फीमेल। अब एक एक को डील करेंगे एंड दीज अगेन ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये प्री के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम टेस्टिस को होल्ड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, टेस्टिस ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि यहीं पे गैमेट्स बनते हैं, तो इस चीज को हम मार्क करके रखेंगे। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर मेल्स। फिर वैस्ट डिफरेंस, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख जाएगा, ये जो ट्यूब में यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसी को हम कहते हैं वैस्ट डिफरेंस, यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट, स्पर्मेटिक डक्ट्स, स्पर्मेटिक डक्ट्स का काम क्या है, ये स्पर्म वगैरह को टेस्टिस से कैरी करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये जो डक्ट है इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटिक डक्ट। नेक्स्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, जब हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तीन तरह का एसेसरी ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। लेकिन ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं इनकी खासियत क्या है, ये सीमेन बनाने में हेल्प करते हैं। जो मेल इजैकुलेशन में जो लिक्विड होता है सीमेन, उसी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो इस चीज को हम मार्क करके रखें, याद रखेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, एंड लास्ट ऑफ कोर्स पेनिस। So these are the glands and parts involved in male reproductive system. अब आगे बढ़ जाते हैं towards female reproductive system। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। पहला है ओवरी। ओवरी की अगर हम बात करें हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। रीजन भी यहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है एंड एग क्या है, फीमेल गैमीट है। अब क्योंकि गैमीट यहीं पे प्रोड्यूस हुई तो ये बन गया हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके अलावा क्या है, फैलोपियन ट्यूब। डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है ओवरी, और ओवरी से जो अटैच ये आपको ट्यूब दिख रही है इसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। बाय द वे फैलोपियन ट्यूब का एक ऑल्टरनेट नेम भी है, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही एग रिलीज होती है, ओवरी से एग रिलीज होती है, ये फैलोपियन ट्यूब में आके रह जाती है। इसका काम क्या है, एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल स्पर्म और ओवा यहीं पे आके मीट करते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए प्री क्वेश्चन बन गया, फैलोपियन ट्यूब का ऑल्टरनेट नेम क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करती है। अगेन ये एक ही जगह पे फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में। ठीक, फिर यूट्रस, यूट्रस का काम क्या है, ये बेबी के ग्रोथ में ये हेल्प करेगा यूट्रस। फिर उसके बाद आता है वेजाइना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर being opening for female reproductive system. So with this we are done with our human reproductive system. Again no detailation is required, हम बस parts को और उनके functions को हम यहाँ पे याद रखेंगे from tree perspective. Next आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हमें रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानना है।
देखते हैं रिप्रोडक्टिव हाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो बनता क्या है, जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को हम 3 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे और इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व दैट इज स्पर्म एंड एग इन्वॉल्व है इसे प्री के लिए हम मार्क करेंगे. So the process of fusion of sperm with egg to produce zygote is known as fertilization. And fertilization का प्रोडक्ट क्या है, हमेशा zygote रहेगा. Next, fertilization is a crucial stage of reproduction in human beings. Of course, without fertilization zygote बनेगा ही नहीं, और अगर zygote नहीं बनेगा तो आगे चल के बेबी बनेगा ही नहीं. The fertilized egg is called the zygote. Zygote later will start to divide into many cells and develop into a embryo. फिर बाद में embryo will develop into a fetus. डायग्राम पे अगर हम ध्यान दें यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये फर्टिलाइज सेल या फिर जाइगोट. फिर धीरे धीरे ये सेल डिवाइड होती है, 1 से 2 से 4 ऐसे डिवाइड होते हैं. जैसे यहाँ पे दिख जाएगा एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन गए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. अब 16 सेल के बाद जब ये डिवाइड होती है ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे बन गए और हम इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. फिर ब्लास्टोसिस्ट 4 हफ्ते बाद ये फीटस में डेवलप हो जाता है, ये आपको दिख जाएगा फीटस. ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाला जो स्टेज है, कहाँ से, फर्टिलाइज्ड सेल से ब्लास्टोसिस्ट, इस स्टेज को हम कहते हैं एम्ब्रियो. फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप होकर फीटस, फिर आपको दिख जाए 4 हफ्ते, 10 हफ्ते, 16 हफ्ते, 20 हफ्ते बाद ये फीटस पूरी तरह से डेवलप होकर बेबी जैसा दिखने लगा है. आफ्टर प्रेगनेंसी जब ये फीटस मदर के बॉडी से बाहर आ जाता है तो हम इसी को कहते हैं बेबी. सो दिस इज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. अगेन ये जनरल पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये इंडिविजुअली हमारे लिए 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है. रेयर चांस में ये कभी 5 मार्कर में आ सकता है, बट मेनली इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. देखते हैं. पहला है गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? It is a process by which gametes are produced in human reproductive system. ये प्रोसेस है जिसके जरिए हमारी बॉडी में गैमेट प्रोड्यूस होता है. मेल के लिए अलग रहेगा इसका नेम और फीमेल के लिए अलग. जब मेल्स में गैमेटोजेनेसिस होता है तो हम उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है. और फीमेल में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो हम उसे कहते हैं oogenesis. तो ये जो दोनों टर्म्स है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गए. और गैमेटोजेनेसिस एज अ इंडिविजुअल 3 मार्कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आते हैं प्यूबर्टी की तरफ. व्हाट इज प्यूबर्टी? इन ह्यूमंस द स्टेज एट व्हिच द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर एक्टिवेटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी वो एज होती है जब जिंदगी में पहली बार हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहली बार एक्टिवेट होते हैं. काय के लिए एक्टिवेट होते हैं? फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब जब गैमेट्स प्रोड्यूस करने शुरू करती हैं. ये कब होता है, किस एज में होता है? ये फीमेल्स के लिए 11-12 की एज में होता है एंड मेल्स के 13 से 14 की उम्र में ये शुरुआत होती है. एंड अगेन ये फ्लक्चुएट हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में 1-2 साल पहले हो सकता है, किसी में 1-2 साल बाद में भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट एज यही रहता है. तो जिस एज में हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करने शुरू करती है उसी स्पेसिफिक एज और पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी. ठीक, अगेन इंडिविजुअली 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो एज है वो हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक. और इन चीज़ों की वजह से क्या होने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आनी शुरू हो जाती है. जैसे मेल के लिए बियर्ड, फेशियल हेयर वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं, प्यूबिक हेयर आनी शुरू हो जाएंगी, वॉइस चेंज होना शुरू हो जाता है. फीमेल्स के लिए मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप होनी शुरू हो जाती है. तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. यहीं से जेंडर डिफरेंशिएशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है. फिर इसके बाद आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ. व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज अ 20-day साइकिल दैट ऑकर्स इन फीमेल्स. ठीक. ये एक मंथली प्रोसेस है, 20-day साइकिल का एक प्रोसेस है. और इस साइकिल में होता क्या है देखते हैं. इन दिस साइकिल द फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स फॉर रिलीज ऑफ ओवा एंड फर्दर ऑन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड लेटर ऑन फॉर प्रेगनेंसी. यहाँ पे इस 20-day साइकिल में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल बॉडी खुद को तैयार करती है किस चीज़ के लिए? अपकमिंग ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद होने वाले फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है. देखते हैं कैसे क्या प्रिपरेशन होती है इसमें. इन दिस प्रिपरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, अगर आपको याद होगा हम एंडोक्राइन सिस्टम में 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़े थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. तो यहाँ पे उन्हीं हार्मोन्स की बात होती है. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स यूट्राइन वॉल्स थिकन ड्यू टू बिल्डिंग अप ऑफ टिश्यूज
एंड ब्लड सप्लाई वेसल्स इन यूट्रस। स्पेशली एस्ट्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व है। एस्ट्रोजन की वजह से होता क्या है, फीमेल की जो यूट्रस है वो थिक होने लगती है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के प्रेगनेंसी हो और यहीं पे बेबी ग्रो करे, तो यूट्रस यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बट मान लेते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो फिर ये जो पूरी पूरी प्रिपरेशन तो बेकार हो गई। तो इसी वजह से होता क्या है, देखते हैं। इन फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन द यूट्राइन वॉल्स आर ब्रोकन डाउन along with the blood supply vessels। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो ये तैयारी क्या होगी, बेकार होगी। तो इस वजह से फीमेल बॉडी क्या करती है, इन सारी प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करती है, ये जो वॉल्स जो भी रेडी करी थी इसको बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। और रिमूव करने के बाद वापस फीमेल बॉडी क्या करती है, रिपीट से ये प्रोसेस शुरू करती है। अब यही जो टू एंड फ्रो प्रोसेस है, जहाँ पे फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही है, यूट्रस वॉल डेवलप कर रही है, उसको फिर बाद में तोड़ रही है, ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये 28 डे साइकिल के थ्रू फॉलो करता है। और इसे 28 डे साइकिल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इसे भी हम 3 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, बट रेयर चांस के लिए इसे 5 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजन बीइंग, क्यों 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज बीन अ टैबू इन इंडिया। इसे थोड़ा सा ऑकवर्ड नज़र से देखा जाता है, फेमिनिज्म के साथ इसको जोड़ा जाता है, तो इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी था, शायद आपने सुना होगा, जो अयप्पा स्वामी का जो टेम्पल था वहाँ पे मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल को पहले एंट्री नहीं दी गई थी, लेकिन लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इनको परमिशन देना शुरू करा गया। तो इस वजह से न्यूज़ में होने की वजह से ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। फिर आगे बढ़ते हैं पार्टुरेशन की तरफ। व्हाट इज पार्टुरेशन? The separation of fully developed baby from mother at the end of gestation period। प्रेगनेंसी के बाद जब मदर की बॉडी से बेबी बाहर आ जाता है, ये जो प्रोसेस जिसे हम कहते हैं बर्थिंग भी कहते हैं, उसी प्रोसेस का जो बायोलॉजिकल नेम है उसी को हम कहते हैं पार्टुरेशन। तो इस चीज को हम याद रखें। व्हाट इज पार्टुरेशन? इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच बेबी गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो टर्मिनोलॉजीज थी यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वो यहाँ पे वाइंड अप हो गई हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं डिजीजेस। डिजीजेस एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे दो मेजर डिजीजेस हैं, एक है एसटीडी और दूसरी है एड्स। एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट वन इज एसटीडीज। एसटीडीज का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मीनिंग क्या रहेगा? सेक्सुअल रिलेशन की वजह से जब कोई डिजीज एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं एसटीडी। ठीक, देखते हैं। These are reproductive tract infections that are transmitted through sexual interaction। ये reproductive tract के इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो रही है। ये 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है एसटीडी, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 3 एग्जांपल्स यहाँ पे एसटीडी के लिए मेजर रहेंगे, सिफाइलिस, गोनोरिया एंड हर्पीज। पहले एक एक करके देखते हैं। सिफाइलिस। सिफाइलिस की अगर हम बात करें, ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। हम इसे मार्क करके रखेंगे। ये बीमारी किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्वेलन जॉइंट्स, जॉइंट्स हो सकती हैं, बॉडी वगैरह कमजोर भी हो जाती है, अल्सर वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हम इसको मार्क करके रखें। स्पेसिफिक बीमारी का नाम, कॉजेटिव एजेंट। फिर आते हैं गोनोरिया। गोनोरिया भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम है नीजेरिया। ये बैक्टीरिया का नाम है नीजेरिया। नीजेरिया की वजह से होता है गोनोरिया। ये ज्यादातर वुमेन में होता है। ठीक, इसकी वजह से होता क्या है? इट कॉजेज पेन एंड पस डिस्चार्ज इन जेनिटेलिया। जेनिटेलिया का मतलब है प्राइवेट पार्ट्स। नेक्स्ट आता है हर्पीज। हर्पीज मेजरली मेनली occurs in मेल्स। देखते हैं। इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये वायरस की वजह से, ऊपर की दोनों बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से थी, लेकिन ये वायरस की वजह से होता है। इसकी वजह होगा क्या? इट विल कॉज अल्सर एट जेनिटेलिया। मेल जेनिटेलिया, मेल प्राइवेट पार्ट्स में अल्सर वगैरह कॉज कर सकता है। सो दीज आर योर एसटीडी। ये तीनों एसटीडी हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके कॉजेटिव एजेंट। इसमें से बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है एड्स की तरफ। एड्स हमारे लिए 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे बस एज ए 3 मार्कर पढ़ेंगे। इसको अलग से हम 11 मार्कर के हिसाब से बाद में पढ़ेंगे। देखते हैं इसके बारे में। एड्स फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसमिट कैसे होता है? इट इज अ ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर्ड बाय बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड और सीमेन। ठीक है, ब्लड से भी ट्रांसफर हो सकता है। इस वजह से इवन दो इट इज एन एसटीडी, इसको हमने अलग कैटेगरी रखा है क्योंकि सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड की वजह से ट्रांसफर हो सकता है। ये होता क्या है? इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी की वजह से ये बीमारी फैलती है। ये बीमारी में होता क्या है? इट डैमेजेस इम्यून सिस्टम एंड कॉजेज वेट लॉस ड्यू टू लोअरिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, नोजिया एंड अल्सर। अब होता ये है, एड्स में जो एचआईवी वायरस है ये क्या करता है, हमारे डब्ल्यूबीसी इसको डैमेज कर देता है। अब क्योंकि हमारी डब्ल्यूबीसी डैमेज हो गई है, मर गई है, तो इससे होता ही है हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो बीमारी से लड़ने की जो एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी की वजह से जो बीमारी हमें होती है उसी को हम कहते हैं एड्स। तो व्हाट हैपेंस इन एड्स? इट लीड्स टू रिडक्शन इन आवर इम्यूनिटी। और इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम हो सकता है? इट कैन कॉज वेट लॉस, साथ ही साथ अल्सर, नोजिया वाली फीलिंग वगैरह भी आ सकती है, चक्कर आना, वीकनेस वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती है। सो एड्स को यहाँ पे 3 मार्कर के हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, ओके। विद दिस हमारे जो पूरा बॉडी सिस्टम वाला जो पार्ट है, हमने इसको वाइंड अप कर लिया है। ठीक, ऑल द बॉडी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव, सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स यहाँ पे वाइंड अप हो गए। अब आगे हम पेरिफेरल टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक, टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।